Hello everyone, this is Monica. I welcome all of you to my channel. As you know, we have already started with the reproduction chapter. In the previous video, we studied about asexual reproduction, and in this video, we'll be dealing with sexual reproduction. So let's begin. The topics to be covered in this video will be introduction of human reproductive system, male reproductive system, female reproductive system, secondary sexual characteristics, then reproductive health and sexual reproduction in flowering plants. First, we'll be talking about human reproductive system. ह्यूमन बींग्स आर यूनिसेक्सुअल. इस बात का क्या मतलब है कि हमें एक ही सेक्स प्रेजेंट होगा, इधर वन विल बी मेल और फीमेल. सो देर इज अ डिस्टिंक्ट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मींस देर विल बी टू कैरेक्टर्स. सो मेल्स आर विजिबली डिफरेंट फ्रॉम फीमेल्स. सो विल हैव टू डिफरेंट रिप्रोडक्शन सिस्टम्स, वन मेल एंड अनदर फीमेल. इसलिए हमें उनको सेपरेटली स्टडी करना होगा, क्योंकि हमें पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ेगी. इट इज बाय पेरेंटल मोड. सो दैट इज वाई विल बी डिस्कसिंग बोथ दी reproductive system, male and female. Now let's talk about male reproductive system first, as sexual reproduction is completed in two steps. One is production of germ cells, जिसको हम gametes भी बोलते हैं, and another is movement or we can say transfer of germ cells to the site of fertilization. फिर अब germ cells तो produce हो गए, लेकिन जहां fertilization होनी है वहां तक उनकी movement. So इन दो parts में reproduction complete होगी. So they need special organs to do so. In case of male, the formation of germ cells or we can say sperms takes place in the testes. यानी कि मेल्स के केस में germ cells का क्या नाम है? sperms. और वो कहाँ प्रोड्यूस होंगे? टेस्टिस में. एंड दे आर डिलीवर्ड थ्रू. अब हमने कहा एक तो फॉर्मेशन थी, प्रोडक्शन थी germ cell की, वो हो गई. Then it has to be transferred to the site of fertilization. So they will be transferred. They will be delivered through vasa deferens or vas deferens. So there are several parts of male reproductive system: a pair of testes, scrotum, vas deferens, vas efferents, vas deferens, associated glands, urethra, that is common opening for reproductive sperm, and excretory system, that is urine, and penis. See, this is the diagram of male reproductive system, in which we have scrotum, which will carry a pair of testes. एक ये testes और एक testis. This will be carried in a pouch-like structure called scrotum. Then the sperms will be produced in seminiferous tubules present inside these testes, and those tubes will form groups of 4 to 5 tubes, and they will combine together and will reach vasa efferentia. From vasa efferentia, the sperms will get transferred to epididymis, and from epididymis they will transfer to vasa deferentia or vas deferens. From this pipe, this duct, vas deferens, the sperms will move into urethra. Before moving into urethra, see, this is urinary bladder, और urinary bladder के पीछे ही ये सब चीजें होती हैं. और यहाँ पर और भी glands वगैरह भी होते हैं, जैसे कि इसमें कौन है? seminal vesicle, prostate gland. Seminal vesicle is this yellow colored gland, and this prostate gland, this is the prostate gland, and then this is urethra, the passage for sperm or urine, and this is the outer covering called penis. तो ये हमने पार्ट्स देख लिए डायग्रामेटिक फॉर्म में भी. तो आपको भी इस तरीके से डायग्राम बनाना है और उनकी लेबलिंग करनी है. देन आई स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन. टेस्टीज. सो दीज आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. तो अगर आपसे कोई पूछे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन है? टेस्टीज. बाकी सब सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या असेसरीज हैं, वो सिर्फ हेल्प करेंगी. So testes lie outside the abdominal cavity. वो abdominal cavity के बाहर होती हैं, because sperms are produced here. As sperms are produced here, production of sperms require less temperature than the body temperature. Sperms की production को body temperature से कम temperature required होता है, इसीलिए वो abdominal cavity से बाहर lie करती है scrotum के अंदर. So they start producing sperms from puberty and continue to do so throughout their life. They also produce testosterone, और वो कौन करता है? एक स्पेशल सेल, लेडिंग सेल. यानी कि टेस्टिस के दो काम है. एक तो क्या? स्पर्म प्रोड्यूस करना, और दूसरा काम क्या है? हार्मोन रिलीज करना, जिसका क्या नाम है? टेस्टोस्टेरोन, जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या जितने भी आप में चेंजेस आते हैं मेल्स में, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. टेस्टिस जो है वो प्यूबर्टी की एज में ही डिसेंड डाउन करती हैं, बाद में नीचे आती है. वो उससे पहले एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती हैं. देन स्क्रोटम. अभी स्क्रोटम का जिक्र आया था ऊपर टेस्टिस की जब बात कर रहे थे
क्योंकि टेस्टिस में क्या हो रही है, स्पर्म प्रोडक्शन, और उसको क्या चाहिए, कम टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर से। तो उसको कुछ स्ट्रक्चर चाहिए था जिसमें टेस्टिस हो, तो वो बॉडी से बाहर लाई करती है, किसके अंदर, स्क्रोटम के अंदर। सो इट इज अ पाउच ऑफ स्किन विच हैव टेस्टिस इन इट। इट इज इंटरनली डिवाइडेड इनटू टू सेक्स, क्योंकि स्क्रोटम क्या कैरी करता है, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, यानी कि दो टेस्टिस, सो इट विल हैव टू सेक्स, राइट एंड लेफ्ट सेक्स। सो इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए कम टेम्परेचर की जरूरत है बॉडी टेम्परेचर से, तो वो कौन मेंटेन कर रहा है, स्क्रोटम। सो ड्यूरिंग विंटर्स व्हेन टेम्परेचर इज लो, अब हमें पता है सर्दियों में टेम्परेचर लो हो जाता है, सो स्क्रोटम विल श्रिंक टू ब्रिंग द टेस्टिस क्लोज टू द बॉडी टू गेट द वार्मथ। तो वो श्रिंक कर जाएगा ताकि टेस्टिस बॉडी के पास आ सके वार्मथ के लिए। एट बर्थ टेस्टिस आर प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी, बट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी दे डिसेंड डाउन इनटू स्क्रोटम। देन इज vasa efferentia. So it is the connecting link between the testes and epididymis. Semiferous tubules open into vasa efferentia. It leads from rete testes to vasa deferens. ये कनेक्टिंग लिंक है बस टेस्टिस और एपिडाइडमिस के बीच में। टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं जो क्या प्रोड्यूस करती हैं, स्पर्म्स, दैट विल ओपन इनटू वासा इफ्रेंशिया, और वासा इफ्रेंशिया से फिर वो वासा डेफरेंस में या वास डेफरेंस में या वासा डिफरेंशिया में कह लीजिए, वास डेफरेंस में स्पर्म्स ट्रांसफर हो जाएंगे। देन इज वास डेफरेंस, इट कैरीज मैच्योर स्पर्म्स फ्रॉम एपिडाइडमिस टू यूरेथ्रा। स्पर्म्स को यूरेथ्रा तक लेकर जाने का काम किसका है, वास डेफरेंस का। स्पर्म फ्रॉम हियर अराइव्स एट सेमिनल वेसाइकल, देखा था ना आपने डायग्राम में, एक ग्लैंड था सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल। स्पर्म यहां से कहां जाएंगे, सेमिनल वेसाइकल में, वहां क्या होगा, इट विल सिक्रीट फ्लूइड एंड देन स्पर्म्स आर पुश्ड फॉरवर्ड टू यूरेथ्रा। अब स्पर्म्स को मोबिलिटी चाहिए, मूवमेंट चाहिए, तो यहां से क्या होगा, इन ग्लैंड्स की हेल्प से क्या होगा, यहां से कुछ लिक्विड, कुछ फ्लूइड सिक्रीट होगा, रिलीज होगा, जो उन स्पर्म्स के साथ मिक्सअप होकर यूरेथ्रा में जाएगा, जिससे कि उनकी क्या होगी, मोबिलिटी बढ़ेगी, मूवमेंट बढ़ेगी। देन देयर आर वेरियस एसोसिएटेड ग्लैंड्स व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट। वन ऑफ देम जिसके बारे में अभी बात की थी, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। नाउ सी, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड सीमन। अब सीमन कुछ नहीं होता, स्पर्म और सेमाइनल फ्लूइड को मिलाकर जो वर्ड यूज किया जाता है उसको क्या कहते हैं, सीमन। यानी कि अभी हमने थोड़ी देर पहले जो डिस्कशन की थी कि सेमिनल वेसाइकल्स में से जो फ्लूइड रिलीज होगा वो स्पर्म्स के साथ मिक्स हो जाएगा और फिर स्पर्म्स को मूवमेंट मिलेगी। सो स्पर्म प्लस सेमिनल फ्लूइड इज कॉल्ड सीमन एक्ट। इट प्रोड्यूसेस एंड स्टोर फ्लूइड दैट इवेंचुअली बिकम सीमन। और इसका क्या काम है, इट न्यूट्रलाइजेस द एसिडिटी ऑफ फीमेल वेजिना। अब फीमेल वेजिना बहुत एसिडिक होता है नेचर में, ये उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज, यानी कि ये बेसिक होगा नेचर में। देन इज प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड, ये देखिए, दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड। सो दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड, दे आर बाइलोब्ड, बाय मीन्स टू, तो इसके दो लोब्स हैं। तो दिस इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर लोकेटेड जस्ट बिलो द ब्लैडर, और ये उस फ्लूइड का 20% होता है, एंड इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द फ्लूइड दैट नरिशेस एंड ट्रांसपोर्ट्स स्पर्म्स। सेमाइनल वेसाइकल के फ्लूइड का क्या काम है, वो एसिडिटी को घटाता है, एट द सेम टाइम फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है मटेरियल को। एंड प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या काम है, वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और स्पर्म्स की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। देन इज बल्बो यूरेथ्रल, दैट इज पी शेप्ड ग्लैंड बीनीथ द प्रोस्टेट ग्लैंड्स। इट क्लिंसेस यूरेथ्रा। अब हमें ये पता है कि द यूरेथ्रा इन मेल सिस्टम कैरीज बोथ यूरिन एंड स्पर्म्स, और स्पर्म्स बहुत सेंसिटिव है, तो उनके लिए पैसेज का क्लीन होना बहुत जरूरी है, तो वो काम कौन करेगा, बल्बो यूरेथ्रल। सो इट ऑल्सो सर्व्स एज ल्यूब्रिकेशन मीडियम। देन इज यूरेथ्रा, इट इज अ ट्यूब विच अराइजेस फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू कैरी यूरिन एंड स्पर्म्स। इट रन थ्रू पेनिस। And what is penis? It is a long and thick muscular organ made up of mostly erectile tissue. The tip of penis consists of a soft and sensitive glans penis, which is covered by a loose retractable fold of skin called foreskin. At the time of sexual excitement, the erectile tissue gets filled with blood, causing the penis to become erect. That is all about male reproductive system. Now we'll be studying female reproductive system. It is a bit complex than male reproductive system, but it is also easy. It consists of following organs. A pair of almond-sized ovaries, सिर्फ बादाम के साइज जितनी छोटी, and a pair of oviduct. ओविडक्ट का ही दूसरा नाम क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब्स। तो कोई भी ऐसा वर्ड यूज करे, फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही बात है। देन इज यूट्रस, जिसको वूम भी बोला जाता है, एंड सर्विक्स, वेजिना। अब इसका एक बार डायग्राम देख लीजिए ताकि
माइंड में बैठ जाए कि हम क्या बात करने वाले हैं. दिस इज पेयर शेप्ड स्ट्रक्चर एंड दीज आर द ट्यूब्स विच आर कॉल्ड फेलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट एंड दीज आर फिम्ब्रिए, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर. दिस इज ओवरी, जिसको हम एलमोंड साइज ही कह रहे थे कि वो बादाम के साइज की जितनी होती है. सो देर आर 2 ovaries or we can say a pair of ovary and 2 fallopian tubes or we can say a pair of fallopian tubes, क्योंकि जाहिर सी बात है 2 ovaries है तो 2 fallopian tube होंगी. Then cervix, vagina and this is uterus. This portion is uterus. Now see. अब बेसिक सा प्रोसीजर यही डायग्राम में देख लेते हैं, फिर नोट्स में फर्दर एक्सप्लेनेशन देख लेंगे. ओवरी क्या करती हैं? ओवरी प्रेजेंट होती है बाय बर्थ. फीमेल्स की ओवरी में एग्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन वो मेच्योर फॉर्म में नहीं होते. तो क्योंकि उसमें स्टार्टिंग से ही एग्स प्रेजेंट है, लेकिन जैसे ही प्यूबर्टी एज आती है गर्ल्स की, दे विल स्टार्ट रिलीजिंग, दीज ओवरीज विल स्टार्ट रिलीजिंग एग्स. उनमें से एग्स निकलने स्टार्ट हो जाएंगे 1 by 1, क्योंकि वो बहुत लिमिटेड है नंबर में. बॉयज के केस में क्या हो रहा है, स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट होती है प्यूबर्टी की एज में और वो थाउजेंड्स में एक साथ प्रोड्यूस करते हैं. लेकिन इनका क्या है, ये पैदा ही थाउजेंड्स लेकर हुए हैं स्टार्टिंग से. तो जैसे जैसे इनकी एज बढ़ेगी नंबर ऑफ एग्स कम होते जाएंगे. तो इनका जो एग रिलीज होगा वो सिर्फ सिंगल एग रिलीज होगा, ईदर फ्रॉम दिस साइड और फ्रॉम दिस साइड. एक्सेप्शनल केसेस में ही, ट्विंस के केसेस में जैसे 2 जगह से रिलीज होकर फर्टिलाइज हो सकता है, अदरवाइज वो एक टाइम पे एक ही एग रिलीज करेंगे. और जैसे ही एग रिलीज होगा तो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हम फिम्ब्रे बोल रहे हैं, ये उनको कैच कर लेंगे और कहाँ लेकर जाएंगे, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन में. साइट मीन्स जगह किसकी, फर्टिलाइजेशन की. तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या हुई, फेलोपियन ट्यूब्स. यहाँ पर एग आ जाएगा मेच्योर होने के बाद, रिलीज होने के बाद, एग मेच्योर होकर रिलीज होने के बाद यहाँ आ जाएगा और यही क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी. फर्टिलाइजेशन क्या होती है, जब मेल गेमीट विल फ्यूज विद फीमेल गेमीट. फीमेल का गेमीट क्या होता है, एग, जिसको हम ओवा भी बोलते हैं, ओवम भी बोलते हैं, ओवम सिंगुलर, ओवा प्लूरल. तो जब यहां से स्पर्म आएगा, सो इट विल ट्रेवल थ्रू ऑल दिस path and it will come till here and it will fuse with this egg. यहां फर्टिलाइजेशन होगी. दिस इज कॉल्ड साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. वो इस साइड भी हो सकती थी बट ओनली 1 at a टाइम. वो ऑल्टरनेटिवली अगर एक मंथ में इस वाले फिलिपियन ट्यूब ने, अगर एक मंथ में इस वाली ओवरी ने रिलीज किया है एग, तो नेक्स्ट मंथ ये वाली रिपेयरिंग का टाइम लेगी और नेक्स्ट मंथ यहां से एग रिलीज होगा. सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हाट विल हैपन, दिस विल स्टार्ट डिसेंडिंग डाउन. दिस फर्टिलाइज्ड एग, जिसको हम जाइगोट बोल रहे हैं, दैट विल स्टार्ट डिसेंडिंग डाउन. जब यहां से फर्टिलाइजेशन हो गई होगी, क्योंकि अब ये सिंगल सेल्ड है, ये सिंगल सेल फर्दर इट विल स्टार्ट टू डिवाइड. वो डिवाइड होना स्टार्ट होगा और डिवाइड होते होते जब वो 32 सेल्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा, 32 सेल्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा, उस वक्त उसको क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसिस्ट. ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं रहता तो बस इतना याद रख लीजिए कि आफ्टर डिवीजन कुछ दिनों बाद वो डिवाइड होते होते एक सेल से मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर बन जाएगा और तब वो यूट्रस में आएगा एंड इट विल गेट इम्प्लांटेड हियर. यहां चिपक जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा, यहां उसकी इम्प्लांटेशन होगी. क्योंकि जैसे ही ये एग फर्टिलाइज हुआ तो माइंड को मैसेज मिल गया था कि फर्टिलाइजेशन हो गई है, वहां से हॉर्मोन्स रिलीज हो गए थे. तो कॉर्पस ल्यूटियन को मैसेज मिल गया था कि अब ईजेस्ट्रोन और प्रोजेस्ट्रोन हॉर्मोन्स को रिलीज करना है. और ये लाइनिंग क्या होती है, थिक होनी स्टार्ट हो जाती है ताकि जाइगोट को या एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन मिल सके. कॉर्पस ल्यूटियम क्या था, कॉर्पस ल्यूटियन क्या था, कॉर्पस मीन्स बॉडी, ल्यूटियन मीन्स येलो, तो इट इज अ येलो कलर्ड बॉडी. आपने जब ध्यान दिया, जब यहाँ पर एग मेच्योर हुआ था तो मेच्योर एग के चारों तरफ एक कवरिंग थी. वो कवरिंग जब रप्चर होती है तो ये एग रिलीज होता है. तो जब ये कवरिंग रप्चर होती है तो जो इसका लेफ्ट आउट पोर्शन है उसको कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियन. वो भी बहुत जरूरी होता है. सो कॉर्पस ल्यूटियन विल कीप ऑन रिलीजिंग दी हॉर्मोन्स. तो जैसे कि आपको याद है, मेल्स के केस में कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा था, टेस्टोस्टेरोन. इस केस में कौन से रिलीज होंगे, एस्ट्रोजन, जिसको ओस्ट्रोजन भी बोल देते हैं. ओ आप लिखे तो ठीक है, अदरवाइज एस्ट्रोजन इज ऑल्सो ओके, एंड प्रोजेस्ट्रोन. ये दो हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं फीमेल्स के केस में. तो जब यहाँ अब जाइगोट इम्प्लांट हो चुका है, अब वो डेवलप होते होते क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो.
अब जैसे यहाँ ये इम्प्लांट होगा, यहाँ एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर भी डेवलप होगा और वो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर आपका क्या कहलाएगा? प्लेसेंटा। उसी के साथ अटैच होती है एक पाइप के थ्रू, वो बेबी के नेवल पे अटैच होता है जिसको हम कहते हैं अम्बिलिकल कोड। तो इसकी हेल्प से क्या हो रहा है? प्लेसेंटा की हेल्प से, क्योंकि वो मदर के यूट्रस की लाइनिंग के साथ अटैच है और बेबी और एम्ब्रियो के साथ अटैच है, इसलिए वहां से क्या हो रहा है? ब्लड सप्लाई हो रहा है। और ब्लड में क्या होता है? आपने पिछले सेम में पढ़ा था, पिछले टर्म में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कि ब्लड कैरी करता है हमारी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स। अब ब्लड के थ्रू बेबी के पास क्या आएगा? एम्ब्रियो के पास क्या आएगा? न्यूट्रिएंट्स आएंगे। और क्योंकि अब वो धीरे धीरे ग्रो करेगा तो वो वेस्ट भी रिलीज करने लगेगा। सो इट विल ऑल्सो हेल्प इन रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट and it will start growing into an infant, and when the time will come, the baby will be expelled out from cervix and then through vagina. Cervix is a muscular organ which can contract and expand. So this is the process when fertilization takes place. What if fertilization does not occur? क्या होगा कि अगर अब क्या होगा कि एग तो रिलीज हो गया, ये आ गया फेलोपियन ट्यूब में, लेकिन सपोज इफ स्पर्म इज अनेबल टू रीच हियर ड्यू टू एनी रीजन, मीन्स फर्टिलाइजेशन हुई ही नहीं, तो उस केस में क्या होगा? क्योंकि फीमेल की बॉडी अपने आप को ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुकी थी, यहाँ पे जो लाइनिंग थी वो थिक हो चुकी थी, तो अब उसकी जरूरत नहीं रही बॉडी को, तो उसको नेक्स्ट टाइम फिर से प्रिपेयर करना होगा उसके लिए। तो लेकिन अभी जो आपको याद है कॉर्पस ल्यूटियम, उसको मैसेज मिल जाएगा कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, हॉर्मोन्स रिलीज होंगे, तो उसे आइडिया होगा कि अब फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो वो यहाँ ब्लड सप्लाई और हार्मोन सप्लाई रोक देगा। तो जैसे ही यहाँ पर सप्लाई रुक जाएगी, ब्लड सप्लाई, तो ये जो लाइनिंग डेवलप हुई थी ये डेड हो जाएगी और ये शेट डाउन, इट विल शेट डाउन। और क्योंकि ये डेड सेल्स अब झड़ जाएंगे, सो दे विल स्टार्ट मूविंग आउट ऑफ वेजिना इन फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस। उसी को हम कह देते हैं मेंस्ट्रुएशन। सो लेट्स स्टडी देम इन डिटेल और एक फॉर्मल तरीके से कि आपको लिखना कैसे है इसे। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन्स: अ पेयर ऑफ एलिमेंट साइज ओवरीज, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट दैट इज फेलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस, सर्विक्स, वेजिना। ओवरीज के बारे में क्या लिखना है? द फीमेल जर्म सेल, कौन सा फीमेल में जर्म सेल कौन सा होता है या गमीट कौन सा होता है? दैट इज एग्स। दे आर मेड इन दी ओवरीज। Each ovary contain thousands of immature eggs at time of birth itself. On reaching puberty, some of them start maturing. उसमें birth के time से ही eggs होते हैं, लेकिन वो mature होना कब start करते हैं? puberty की age में। One egg is released every month by one of the ovaries. कोई भी एक ओवरी हर महीने एग को रिलीज करती है। It is also responsible for the production of hormones. ओवरीज का क्या काम है? हॉर्मोन्स रिलीज करना, प्रोजेस्ट्रोन और ईजेस्ट्रोन। एक तो एग्स रिलीज करना और हॉर्मोन्स रिलीज करना। आपको याद होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी था, वहां क्या था? टेस्टीज रिलीज कर रही थी। क्या रिलीज करती? स्पर्म्स। तो उनका जर्म सेल क्या था? स्पर्म। और वो भी हार्मोन रिलीज करती, लेकिन वो सिंगल हार्मोन रिलीज करते हैं, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। यहां पर हार्मोन क्या रिलीज हो रहे हैं? दो, प्रोजेस्ट्रोन एंड ईजेस्ट्रोन। देन इज वी हैव फेलोपियन ट्यूब्स, जिसका दूसरा नाम क्या है? ओविडक्ट। Oviduct are 10 to 12 centimeter long muscular tubes which carry egg. ये क्या करती है? egg carry करती है। कहाँ से? From the ovary to uterus. ovary से uterus में। On approximately 14th day from the onset of menstruation, the Graafian follicle ruptures to release egg. Approximately 14th day पर egg release होता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब बिगिन हो जाती है, जब पीरियड का फर्स्ट डे होता है, उसके 14th डे के बाद क्या स्टार्ट होता है? एग रिलीज होना होता है। और उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस रिलीजिंग ऑफ एग को हम क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन। इंपॉर्टेंट टर्म, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन इज नथिंग बट इट इज रिलीजिंग ऑफ एग, mature egg from the ovaries. And you can also write this additional information there. On the 14th day from the onset of menstruation cycle, the follicle ruptures to release egg. And this release of egg is called ovulation. And when egg is released, when the egg is released, what is left behind? Corpus luteum. So corpus luteum is left behind. The egg released is thus taken by fembry. वो जो finger-like structure थी, याद है आपको? So that egg, this released egg will be taken by that finger-like structure called fembry. Spelling can be different, but it should pronounce like fembry. Then fertilization of eggs takes place. Or there is another possibility also that fertilization does not occur. Then is cervix.
It is the lower end of the womb. It is about 2.5 to 3.5 centimeter long. It allows blood from a menstrual period and baby to pass from the womb to vagina. Nothing difficult. Then is uterus. Uterus is inverted P-shaped structure. P-shaped structure था ये uterus, and it is muscular in structure that lies behind the bladder, जो कि bladder के पीछे होता है. It is a hollow organ. Hollow होता है क्योंकि यहाँ बेबी को आना होता है. So it is hollow organ with thick muscular wall. The zygote gets implanted here. यही zygote की implantation होती है. यानी कि अगर आपसे कोई पूछे fertilization कहाँ हो रही है तो हम क्या ध्यान रखेंगे? fallopian tube में. लेकिन बेबी implant कहाँ हो रहा है? यूट्रस में. और उसको न्यूट्रिएंट्स भी कहाँ मिल रहे हैं? यूट्रस में. So the zygote gets implanted here and develop into an embryo and grows there until birth. Then is vagina, this last portion. It is a muscular tube of about 7 to 10 centimeter long. It receives the male's penis during intercourse, or also called copulation. It allows passage of the baby, and as it allows passage of the baby, it is also called birth canal. So vagina is also called birth canal. Functioning of female, then ये तो आपने क्या एक्सप्लेन किया? ऑर्गन्स एक्सप्लेन किए. देन यू मेड अ डायग्राम. नाउ यू विल बी राइटिंग. वो तो डायग्राम बना हुआ था तो मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करी थी, लेकिन एग्जाम में तो आप ऐसा नहीं करेंगे, तो इसलिए आपको ऐसे लिखना है कि पहले उसके ऑर्गन्स के नाम लिखे, फिर ऑर्गन्स को एक्सप्लेन किया, अगर वो ज्यादा मार्क्स में आए तो. अदरवाइज जो भी क्वेश्चन पूछा है शॉर्ट में उसी का आंसर देंगे. इससे रिलेटेड भी वीडियो बनाई जाएगी कि क्वेश्चंस किस तरीके के आएंगे इसमें से. then you will be writing about functioning of female reproductive system, जिसमें वो सब एक्सप्लेन करना है जो मैंने आपको डायग्राम में एक्सप्लेन किया था. The female reproductive system enables a woman to produce egg. Female reproductive system का क्या काम है? वो egg produce करेगा, and this will have sexual intercourse, and it will protect and nourish a fertilized egg until it is fully developed into a baby, and then it will be giving birth. When a baby girl is born, her ovaries contain thousands of immature eggs which become active at puberty. ये हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि जब एक बेबी गर्ल बोर्न होती है वो बर्थ के टाइम पे ही thousands of immature eggs के साथ पैदा होती है, लेकिन वो एक्टिव हो जाते हैं और वो मेच्योर होने लगता है कब? जब वो प्यूबर्टी की एज पे आ जाती है. गर्ल्स बिगिन टू रिलीज दीज एग्स, जिसको हम उस प्रोसेस को ध्यान रखना, रिलीजिंग ऑफ एग इज कॉल्ड ओव्यूलेशन. सो गर्ल्स बिगिन टू रिलीज एग एज पार्ट ऑफ मंथली पीरियड कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल. Once the egg is released from the ovary, एक बार जब egg release हो गया, so and is taken to fallopian tube. Fallopian tube तक कौन लेकर जाएगा? Fembryon. For fertilization, there are two scenarios. Egg release हो गया, fallopian tube में चला गया. अब दो possibilities हैं. Either egg is fertilized or it is not fertilized. So if it is fertilized, then what will have? Pregnancy will take place, जिसमें gestation होगा. And if it will not fertilize, then menstruation will occur. And what is fertilization? When sperm and egg fuse together. So the fertilized egg, जब वो fertilization हो जाएगी, the sperm and egg, they will get fertilized, they will form zygote. And it undergoes many cell divisions. And it starts, after dividing, it will start rolling down from fallopian tube to uterus. And when it becomes 32 cell structure, also called blastocyst, it gets attached to the wall of uterus. और उस attaching को क्या बोलते हैं? Implantation. This process, implantation, takes place about 7 days after fertilization. Embryo get nutrition from mother's blood. With the help of which tissue? Special tissue called placenta. Disc-like structure if you remember. It grows to become fetus. फिर वो grow करता है embryo, क्या बन जाता है? Fetus. So when baby is fully formed, it gives birth. And that process of giving birth is called parturition. This term is also important, parturition. What is parturition? When baby is fully grown, it is expelled out of the body of women. That is called parturition. Or we can say giving birth of the baby is called parturition. This was the case when egg got fertilized. Another case is when egg is not fertilized. So we know egg lives only for 1 day. Of course, sperms can live for 5 to 6 days, but egg can live only for 24 hours or 1 day. So mother's body gets prepared. A thick lining is developed in uterus to receive and nurture the growing embryo. अब वो जो spongy structure है वो thick lining है. That spongy structure is not required क्योंकि egg तो fertilize ही नहीं हुआ. So pregnancy does not occur. अब क्योंकि pregnancy occur नहीं हुई तो corpus luteum को message मिल चुका है. It will stop producing estrogen and progesterone, so level of egesterone and progesterone fell down.
सो सेल्स ऑफ यूट्रीन थिक लाइनिंग स्टार्ट्स टू डाई. अब वो जो यूट्रीन की थिक लाइनिंग थी उसके सेल्स डाई करना स्टार्ट कर जाएंगे. एंड एंडोमेट्रियम that covering inside the uterus is called endometrium. It sheds down and moves out of vagina in the form of blood and mucus. And this happens every month. जब तक fertilization नहीं होती और puberty की age आ चुकी होती है, it happens every month. And it lasts for about, depends from women to women, किसी में 2 days, 3 days, 4 days, up till 8 days. अब ये extra information है. This embryo which gets implanted that start releasing a hormone called human chorionic gonadotropin, also called HCG in short form. उसी हार्मोन की वजह से प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है जो होम किट आती है उसमें. सो इट इज डिटेक्टेड, इट हेल्प्स इन डिटेक्टिंग होम प्रेगनेंसी. इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ब्लड टेस्ट, क्योंकि ब्लड में ये हार्मोन की प्रेजेंस होती है, वहां से पता चलता है दैट समबडी इज प्रेग्नेंट और नॉट. देन देयर इज वन टर्म विच इज लेफ्ट अनडिस्कस्ड एंड दैट इज इंपॉर्टेंट, menopause. And there is one more term called menarche. Menarche is commencement, means to start something. So it is starting of menstruation. And वो कब होती है? Puberty age में. So that is called menarche. Similarly, यहाँ से word पता चल रहा होगा, pause means किसी चीज का रुक जाना. So menopause is the word used for stoppage of menstruation cycle. That happens approximately from 45 to 55 years तक वो हो जाती है women में. क्यों? क्योंकि उनके पास जो नंबर ऑफ एग्स थे दे वर फिक्स्ड. अब एज के साथ साथ एवरी मंथ द एग इज रिलीज, सो देर आर नो मोर एग्स टू रिलीज. तो अब उनकी देर इज नो मोर रिप्रोडक्टिविटी प्रेजेंट इन दैट वुमेन. सो मेनोपोज अकर. सो रिप्रोडक्शन कैन अकर बिटवीन दीज स्टेजेस, मेनार्क एंड मेनोपोज ओनली. फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका प्लेसेंटा का भी अलग से आ सकता है, 1 or 2 मार्क क्वेश्चन. व्हाट इज प्लेसेंटा एंड व्हाट्स इट्स रोल और इट्स फंक्शन? So it serves as the nutritive, respiratory and excretory organ. Nutritive, why? Because it provides nourishment and nutrition, we can say. Respiratory, because exchange of gases takes place through this with the help of blood. And excretory organ, of course, because the fetus will start releasing nitrogenous waste and that will be taken with the help of mother's blood again. So this placenta will serve as nutritive, respiratory and excretory organ. अब ये तो था कि विमेन बॉडी क्या कर सकती है. इधर द एग कैन फर्टिलाइज और इधर इट कैन नॉट गेट फर्टिलाइज्ड. बट देयर कैन बी ए चॉइस ऑल्सो. यू माइट नॉट वॉन्ट अ बेबी फॉर एनी रीजन. वो कुछ भी हो सकता है बिकॉज यू ऑलरेडी हैव. सो देयर कैन बी एनी रीजन. सो इफ यू वॉन्ट टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन टू अकर, नाउ यू नो वॉट आर द रीजन्स ऑफ फर्टिलाइजेशन. अगर हम आपको नहीं भी पढ़ाते तो थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि अगर फर्टिलाइजेशन हमें ये पता है कि किस किस वजह से होता है तो उसको प्रिवेंट करने के क्या तरीके होंगे. सो देर आर वेरियस टेक्निक्स, बैरियर मेथड, केमिकल मेथड, इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, नेचुरल मेथड और सर्जिकल मेथड. द इजिएस्ट वन इज नेचुरल मेथड. अवॉइड कॉपुलेशन, डोंट डू एनीथिंग. बैरियर मेथड इज use barriers, like if in case of men we can use condoms, in case of females we can use femidoms और डायफ्रागम. वी कैन ऑल्सो यूज केमिकल्स. केमिकल मेथड में क्या होगा, कोई भी टेबलेट जैसी चीज है, कोई भी अगर हम केमिकल चीज यूज कर रहे हैं, सो इट विल कम अंडर केमिकल मेथड्स. दे कैन बी ओरल पिल्स. ओरल पिल्स मीन्स विच आर टेकन वाया माउथ. सो ओरल पिल्स मीन्स दवाइयां लेना, कैप्सूल या कोई भी इस तरीके की. सो दे आर वेजिनल पिल्स टू किल स्पर्म. उन पिल्स में क्या होता है कि दे विल किल स्पर्म्स. देन इज इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस. वन ऑफ द एग्जाम्पल इज कॉपर टी. दिस विल प्रिवेंट इम्प्लांटेशन. अब देखिए इम्प्लांटेशन कहाँ होती है. इम्प्लांटेशन इज इन दी यूट्रस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो ये इम्प्लांटेशन ही रोक दी, यानी कि कॉपर टी कहाँ इम्प्लांट हो रहा है, इट इज फिक्स्ड इन दी यूट्रस. और वो कब तक चलता है, क्योंकि वो कॉपर का बना होता है, 5 years की उसकी लाइफ अप्रोक्सीमेटली, यानी कि उसको दोबारा इम्प्लांट कराना होगा क्योंकि वो खराब हो जाएगा 5 years अप्रोक्सीमेटली 5 years के बाद. और इसके अलावा इतना ही नहीं, इट विल कॉज डिस्कम्फर्ट. तो इतनी प्रॉब्लम करना ही क्यों. वाई नॉट टू यूज नेचुरल मेथड. देयर इज सर्जिकल मेथड. सर्जिकल मेथड में स्टेरिलाइजेशन, इसको स्टेरिलाइजेशन भी बोलते हैं. इसमें वेसेक्टोमी दैट इज डन इन मेल्स. उसमें क्या होगा, जाहिर सी बात है मेल्स में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, स्पर्म्स. और स्पर्म्स कहाँ से आते हैं, वास डेफरेंस से. तो वो वास डेफरेंस को ही रिमूव कर दें सर्जिकली, यानी उसे काट दिया जाता है. देन इज ट्यूबेक्टोमी. वैसेक्टोमी इज इन मेल्स, ट्यूबेक्टोमी इज इन फीमेल्स. फीमेल्स में क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एग्स. और एग्स
एग्स कहाँ से आती हैं, कहाँ पे फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रही होती है, फेलोपियन ट्यूब्स में. सो इट इज रिमूवल ऑफ स्मॉल पोर्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स. सो इसमें फेलोपियन ट्यूब को कुछ पोर्शन काट दिया जाता है. सो कट एंड्स, और फिर उन कटे हुए एंड्स को एक थ्रेड से टाई कर दिया जाता है. सो विच विल स्टॉप द एंट्रेंस ऑफ एग्स इनटू फेलोपियन ट्यूब्स. तो अगर एग्स ही नहीं आएंगे तो स्पर्म आए तो भी नो फर्टिलाइजेशन विल अकर. सो दीज आर वेरियस टेक्निक्स टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन. अब कुछ टॉपिक्स हैं जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाने से पहले भी पढ़ाए जा सकते थे, लेकिन अगर बाद में भी पढ़ा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में बिल्कुल मेंशन्ड है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. सो देर आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स. Primary sexual characters are those that are present at birth itself, whereas secondary sexual characters are those that develop at puberty. अब तक आपको पता चल ही चुका होगा प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स कौन से हैं और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं. प्यूबर्टी की एज में बहुत सारे चेंजेस दिखाई देते हैं आपको दोनों में, मेल्स में और फीमेल्स में. तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो बाद में डेवलप हो रहे हैं, बाद में विजिबल हुए, वो आपके क्या कहलाएंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. सो व्हाट इज प्यूबर्टी? It is the age at which reproductive organs become functional. वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं and start producing germ cells and sex hormones. And the boys and girls become sexually mature to reproduce. So this is puberty, जिसमें क्या होता है, reproductive organs functional हो जाते हैं. उनका काम क्या था, germ cells produce करना और sex hormones produce करना. और उस वक्त वो इतने मेच्योर, सेक्सुअली इतने मेच्योर हो चुके होते हैं कि अब वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. मेल्स की प्यूबर्टी एज 13 to 14 ईयर्स के आसपास आ जाती है एंड फीमेल्स की 10 to 12 ईयर्स. सो व्हाट आर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स? वॉट एवर चेंजेस यू सी, like enlargement of penis and scrotum, broadening of shoulders and increased muscle development, enlargement of larynx. यहाँ पर दिखाई भी देता होगा आपको गले में एक अलग सा पोर्शन निकला हुआ. सो डीपनिंग ऑफ वॉइस, जिसको हम क्रैक्ड वॉइस भी बोल देते हैं. जैसे लड़के बड़े होते हैं तो उनकी आवाज बड़ी भारी भारी हो जाती है, फटी फटी. सो ग्रोथ ऑफ पब्लिक हेयर ऑन फेस, इन आर्मपिट और चेस्ट एक्सेट्रा. साइकोलॉजिकल अट्रैक्शन टूवर्ड्स ऑपोजिट सेक्स, ऑयली स्किन विच लीड्स टू पिंपल्स. There are certain changes जो दोनों में सिमिलर हैं. So you will see them. Changes in females और कुछ अलग है, like growth of breast, growth of public hair, broadening of pelvic region to adjust the baby. So increase in fat, menstruation starts, oily skin, and she also begins to be conscious and aware about both herself and others' body. Then there is one more important topic. It is related to reproductive health and sexually transmitted diseases. WHO ने डेफिनेशन दी है हेल्थ की अदरवाइज भी, नॉट ओनली सेक्सुअली, अदरवाइज भी. जो WHO की हेल्थ की डेफिनेशन है उसमें सिर्फ फिजिकल हेल्थ कंसिडर नहीं होती. इसी तरीके से रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी के लिए भी WHO की डेफिनेशन क्या है? इट इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल एंड नॉट ओनली फिजिकल, सी, इट इज इमोशनल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. अब आप सोच रहे होंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में इमोशनल, मेंटल, सोशल वेलबींग कहाँ से आ गई? हर चीज में होता है. देखिए, फिजिकल तो यू अंडरस्टैंड कि ऑर्गन शुड बी फिजिकली फिट, मीन्स कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए. देन इज इमोशनल, वन शुड बी इमोशनली रेडी एंड बैलेंस टू रिप्रोड्यूस. इट शुड नॉट बी फोर्सफुल. मेंटल, आपने देखा ही है किस तरीके से विमेन इज रिस्पॉन्सिबल नॉट ओनली इमोशनली बट ऑल्सो फिजिकली. हर बॉडी स्टार्ट्स preparing itself as soon as the fertilization occurs. So it is very, very important कि her consent is very, very necessary. Social well-being. Social well-being means, of course, we should take care of the about family planning. So this is how everything has to be taken care of. So in 1951, India started campaign for reproductive health called family planning, and now it is called reproductive and child health program. आप देख रहे हैं किस तरीके से 1951 में इंडिया ने जब कैंपेन स्टार्ट किया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड, तो उसका नाम क्या रखा गया था? फैमिली प्लानिंग. क्योंकि उस टाइम समय की जरूरत यही थी, क्योंकि उस टाइम लोगों को इतना बताना जरूरी था कि फैमिली प्लानिंग की बहुत जरूरत है. पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रेट पे बढ़ रही है. आपको समझना होगा दैट इट इज नॉट नेसेसरी टू प्रोड्यूस मेनी किड्स, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव हेल्दी किड्स. सो उनको उस वक्त ये बताना जरूरी था. अब लोग एजुकेटेड हैं, वो इतना जान गए हैं, तो उनको भी ये बताने की जरूरत नहीं है. अब उनको क्या देखना है? अब उन्होंने अपना एजेंडा चेंज कर लिया और उस हिसाब से उनका कैंपेन का मोटो चेंज हो गया. इट इज नाउ इट्स नेम्ड एज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम. वो एक हायर लेवल पे चला गया कि अब जो प्रोग्राम है इट इज मोर अबाउट रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ. उसमें चाइल्ड की हेल्थ का भी कंसर्न है.
सो नाउ प्रॉब्लम्स नीड्स टू बी एड्रेस्ड. मेन प्रॉब्लम्स क्या है जिन पर ध्यान देना है? लैक ऑफ अवेयरनेस. लोग अवेयर ही नहीं होते, उन्हें कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में नहीं पता होता, एसटीडीज के बारे में नहीं पता होता, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, और अगर पता होता है दे हेजिटेट व्हाइल टॉकिंग अबाउट दीज. जेंडर बेस्ड वायलेंस वेरी कॉमन. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. मिसकंसेप्शंस लाइक पैटर्नल डोमिनेंसी, ये तो है ही. एंड लैक ऑफ पैटर्नल डोमिनेंसी मीन्स जहां पर मेल मेंबर्स अपने आप को डोमिनेट करते हो. लैक ऑफ एजुकेशन विच इज इम्प्रूविंग, अब ऐसा नहीं है, पीपल आर गेटिंग एजुकेटेड. इलीगल अबॉर्शन, दैट इज फीमेल फिटिसाइड, जिसमें प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है. प्री नेटल मीन्स बर्थ से पहले. सेक्स डिटर्मिनेशन मीन्स ये पता करवाना कि उसका बच्चे का जेंडर क्या है, मेल है कि फीमेल, क्योंकि आज भी ऐसा चाहते हैं कि दे ओनली वांट अ मेल चाइल्ड. सो अगर ऐसा उनको दिखता है पहले ही कि इट इज अ फीमेल, दे ट्राई टू गेट अबॉर्टेड. नाउ ऑफ कोर्स इफ देयर आर प्रॉब्लम्स देयर हैज टू बी, we have to find solutions also. So create awareness अगर awareness नहीं है. अभी तो आपको पता है कि आप लोगों को educate किया जाता है. There is sex education is included in the curriculum. Conduction of seminars should be there, webinars, workshops, not only for kids, for parents also. Education is the only tool, I believe. Then protection of human rights means उसकी full consent के साथ ही हो, कुछ otherwise ना हो. Not only for females, at times it happens with males also. So whatever happens, it should happen with full consent. As sexual act always has the potential to lead to pregnancy. And why it is so important? Because generally sexual act will lead to pregnancy. And pregnancy have major impact not only on body but also on the mind. Because so her health is of prime importance. And health, mind you, health not only physical, emotional, social, mental also. So here health does not mean only physical wellness but also her emotional and mental wellness. Whether she wanted to conceive or not, that is important. Then one should have access to accurate information and safe, effective, affordable and acceptable contraceptive methods of their choice. Everyone must have information and ability to protect themselves from sexually transmitted infections. अब ये भी जानना जरूरी है. This is another important topic. Sexually transmitted diseases, also called STDs. They are also called venereal diseases, VDs. They are communicable diseases. They are infectious means they are communicable diseases which are spread from an infected person to a healthy person by sexual contact. Mind you, please, by sexual contact, not by touching you. They are usually caused by gonorrhea. Then is syphilis, caused by Haemophilus. Then is trichomoniasis, caused by Trichomonas. Chlamydia, caused by Chlamydia. Trachomatis. Then is AIDS, caused by HIV. And what is AIDS? इसकी भी full form पूछ ली जाती है. It is acquired immunodeficiency syndrome. And what is HIV? It is human immunodeficiency virus. इसमें क्या हो जाता है? इसके symptoms क्या हैं? फीवर, लथार्जी मीन्स थका हुआ महसूस होता है, नोजिया, वोमिटिंग जैसा फील होता है, हेडेक हो जाता है, बॉडी पर रैशेज हो जाते हैं, एंड फाइनली वीकनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम. इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है कि अब वो किसी भी बीमारी को रेजिस्ट नहीं कर पाता. अगर साथ में किसी को कोल्ड है तो उसे फटाफट कोल्ड हो जाएगा, मतलब वो डिजीज जल्दी कैच करेगा, उसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाएगा, और वो इतना वीक हो जाता है कि इट विल देन आफ्टर सम टाइम इट विल लीड टू डेथ. देयर इज नो डेफिनेट क्योर येट. अब एक छोटा सा पोर्शन रह गया इस चैप्टर का, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, वी विल टॉक अबाउट फ्लावर्स, क्योंकि वही उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उसी के अंदर उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ अ फ्लावर इन विच वी हैव बोथ द ऑर्गन्स, मेल एंड फीमेल. these are the male reproductive organs and these are the female reproductive organs. We'll draw a flower. अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है, does not matter. what is important is कि आप इन बॉडी पार्ट्स को अच्छे से बनाएं और उनकी लेबलिंग अच्छे से करें. आपको क्या करना है, बस ऐसे, अगर आप ऐसा भी बना पाते हैं, इट इज फेयर इनफ. आपने ये क्या बना दिया, यू मेड स्टिग्मा. ये डंडी क्या कहलाएगी, स्टाइल. एंड दिस इज योर ओवरी. तो ये आपने क्या बना दिया, पिस्टिल, जिसका दूसरा नाम कार्पल भी है.
ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अगर आप ऐसा फ्लावर पूरा पूरा नहीं बनाते हैं तो आप उसे सेपरेटली इस तरीके से दिखा सकते हैं कि मैंने ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बना दिए, जिसमें ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवरी है। ओके, देन हाँ, अगर कंप्लीट डायग्राम उन्होंने बोला ही है फ्लावर का डायग्राम बनाओ तो बनाना पड़ेगा, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। देन व्हाट एल्स इज देयर, वी हैव stamen, and in the stamen we have anther and filament. Anther and filament together is called stamen. और ये पत्तियां, जो कलरफुल पत्तियां हैं, इनको क्या कहते हैं? पेटल्स। और जो ये ग्रीन पोर्शन होता है इसको क्या कहते हैं? सेपल्स। और ये वाला पोर्शन जिसपे फ्लावर टिका होता है इसको क्या कहते हैं? थैलमस। ये नॉन इसेंशियल पार्ट्स हैं, थैलमस, सेपल और पेटल्स। दीज आर नॉन इसेंशियल पार्ट्स, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी नहीं है। रिप्रोडक्शन के लिए एसेंशियल पार्ट कौन से हैं? जो गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे, सेक्स सेल्स प्रोड्यूस करेंगे, वो कौन होंगे? स्टेमन और कार्पल। मेल के केस में स्टेमन, फीमेल के केस में कार्पल। दीज आर एसेंशियल पार्ट एज दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, क्योंकि यही क्या करेंगे? जर्म सेल्स कैरी करेंगे। स्टेमन क्या कैरी करेंगे? पोलन ग्रेन्स, और कार्पल एग्स, जिसको ओवा भी बोल सकते हैं। अब फ्लावर अपने दो तरीके के हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। Unisexual, the word says uni means single, means it will contain either of these eggs, means either it will contain stamen, that is male reproductive system, or carpel. Bisexual flower में क्या होता है? It will contain both. एक ही फ्लावर में दोनों ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। जैसे हमने जो डायग्राम बनाया था वो बाइसेक्सुअल फ्लावर का बनाया था। यूनिसेक्सुअल का एग्जाम्पल पपाया और वाटरमेलन, बाइसेक्सुअल का हिबिस्कस, मस्टर्ड, मैरीगोल्ड एंड सो ऑन। Now we'll explain these parts one by one. We have sepal. Sepal हमने देखा था क्या है? It is generally green in color. जो नीचे था ऐसे पोर्शन ऐसे बना हुआ था, थैलमस था यहाँ पर, फिर ओवरी थे ऐसे, तो ये क्या था? सेपल। इट इज जनरली ग्रीन इन कलर, और ये क्या करता है? फ्लावर को प्रोटेक्ट करके रखता है। आपको ध्यान होगा जब जैसे फ्लावर जब बर्ड होता है तो उसके यहाँ पर इस तरीके से सेपल होता है, एक कवरिंग सी बना के रखता है, यानी कि वो उसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। देन वी हैव पेटल्स। पेटल्स वो फ्लावर के पार्ट्स हैं जो आपने बड़े कलरफुल बनाए थे। सो दे आर जनरली लार्ज, छोटे भी हो सकते हैं ऑफकोर्स अगर फ्लावर छोटा होगा। दे आर ब्यूटीफुल एंड ब्राइटली कलर्ड। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई चीज ब्यूटीफुल और ब्राइट है तो वो क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। यहाँ किसको अट्रैक्ट करना है? जो उनकी पॉलिनेशन में मदद करेगा। सो इट विल अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। देन वी हैव कार्पल। कार्पल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ अ फ्लावर, जिसको हम दूसरा नाम क्या कहते हैं? पिस्टल। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और कार्पल में कौन कौन आ जाता है? मेन स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब हमें पता है क्या होगा? मेल गैमीट्स आएंगे जिनको हम क्या कहते हैं? पोलन ग्रेन। वो स्टिग्मा पर स्टिक हो जाएंगे। सो दे विल दिस स्टिकी स्टिग्मा विल रिसीव पोलन ग्रेन्स। नाउ दिस मेल germ will transfer now this male germ will form a tube like structure, this tube, and this is at the end, this is called micropyle, and this will reach to ovaries, and this portion of carpel is called style. This middle elongated part, ये लंबा सा middle part, this swollen part, ये फूला हुआ part क्या कहलाता है? ओवरी। यहीं पर फीमेल जर्म सेल्स होते हैं जिनको एग बोलते हैं, वो हेप्लॉइड हैं। तो यहाँ पर मेल जर्म सेल जाता है इस पाइप के थ्रू एंड इट विल फ्यूज हियर विद फीमेल गैमीट। So ovary contain ovules and each ovule has an egg cell. हर ovule में एक egg cell होता है. The male germ cell produces by pollen grain fuses with the female gamete in ovule. और हमें पता है जब भी male germ cell fuse करेगा female germ cell के साथ, it will form zygote. ये हम human के केस में भी देख चुके हैं. And this process is called fertilization. After pollen grains land on sticky stigma, it has to reach female germ cell in ovary. For this, a tube grows out of the pollen grain and travels through stylus to reach ovary. Okay, now what is pollination? Pollination में क्या हो रहा है? It is transfer of pollen grains. Pollination word से क्या याद रहेगा? किसका ट्रांसफर हो रहा है? pollen grains का. अब pollen grain produce कौन करता है? anther. So ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ द स्टेमन. स्टेमन पूरा वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मेल्स का, टू रिसेप्टिव स्टिग्मा. या आप ये स्किप भी कर सकते हैं, आप सिर्फ इतना लिख सकते हैं ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन
फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। पॉलिनेशन के कॉमन एजेंट्स क्या हैं? विंड, वाटर, बर्ड्स, इंसेक्ट, ह्यूमन बींग्स कैन ऑल्सो बी देयर एंड सो ऑन। बहुत सारे एजेंट्स होते हैं। एजेंट्स क्या होते हैं? जो कैरी करें। क्या कैरी करें? पोलन ग्रेन्स। अब पोलन ग्रेन्स कैसे ट्रांसफर हो सकते हैं? हवा से हो सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही हल्के होते हैं। वाटर के थ्रू ट्रांसफर हो सकते हैं। बर्ड्स के पैरों पे चिपक सकते हैं। बर्ड्स अपनी चोंच में उठाकर ले जा सकते हैं। इंसेक्ट्स के पैरों पे चिपक सकते हैं वो। तो इस तरीके से वो एजेंट का काम करते हैं पॉलिनेशन के। पॉलिनेशन दो तरीके की होती है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। इनके नाम से ही पता चल रहा है, सेल्फ मींस जिसमें पोलन ग्रेन्स सेम प्लांट के फ्लावर में ट्रांसफर हो। सो इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ अ फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, बट दे शुड बी ऑन दी सेम प्लांट। अगर वो फ्लावर सेम प्लांट पर हैं, चाहे वो सेम फ्लावर है या दूसरा फ्लावर है, लेकिन अगर उसी प्लांट का है और उसमें अगर पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं दूसरे स्टिग्मा पर, तो उसको क्या कहेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट। दिस इज कॉल्ड क्रॉस pollination. That's all for today. Thank you for watching. If you like the video, please subscribe and share the channel. Thank you.